All right, good morning everyone. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. In yesterday's class we completed the vocabulary part of conjunctions, right? Today we will be discussing what actually the conjunctions are, right? We are going to start the session within 1 minute. All right, dear students. So now let's see what actually we have in this chapter or in this session. The thing which we are going to discuss is conjunctions, right? जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? कंजंक्शंस वाले चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. Now, what are conjunctions? Let's study in this session. Okay, before moving on to the conjunctions, let's discuss these pictures. Let's see these pictures. This is John and this is Sam. है ना? ये John है और ये कौन है? Sam. Now what we have written here is John and Sam are friends. John and Sam are friends. John और Sam जो हैं वो क्या है? Friends हैं. So what we have done here, we have put and here. हमने क्या लगा रखा है बेटा? And लगा रखा है. हमने क्या लगा रखा है यहाँ पे? And लगा रखा है. And you have to understand कि ये and क्या कर रहा है? John को और Sam को आपस में connect कर रहा है या join कर रहा है. ठीक है, ये एंड क्या कर रहा है बेटा? जॉन को और सैम को आपस में ज्वाइन कर रहा है और यू कैन से कनेक्ट कर रहा है, राइट? नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो दिस गर्ल इज सेइंग टू दैट गर्ल, है ना? ये जो गर्ल है ये इस गर्ल को क्या बोल रही है? आई लाइक टेनिस, है ना? ये क्या बोल रही है उसको? दिस गर्ल इज सेइंग टू दैट गर्ल आई लाइक टेनिस, मुझे टेनिस पसंद है, आई लाइक टेनिस, बट I do not play so well. I do not play so well. Right? All right. Let's continue again. What I was saying, I was saying that these are two sentences. Like first sentence is I like tennis, right? This is one sentence, and the another sentence is I do not play so well. This is the another sentence. So these are two different sentences. तो मैंने क्या कहा? I like tennis ये एक sentence है, and I do not play so well ये another sentence है. इन दोनों को सेपरेट किसने किया? इन दोनों को सेपरेट इस वर्ड बट ने किया. इन दोनों को सेपरेट किसने किया? बट ने. सो हियर दिस बट विल आल्सो बी व्हाट? जॉइनिंग वर्ड. ये क्या हो रहा है? ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि इस वाले सेंटेंस को सारे सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम किसने किया? बट ने किया. तो यहाँ पे तो ये सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा था और यहाँ पे ये एंड जो है वो वर्ड्स को, नाउन को ज्वाइन कर रहा था. ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज आपको समझ में आ गई होगी. नाउ इसका कंजंक्शन से कैसा लिंक है बेटा वो हम समझने वाले हैं अब. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. Read very carefully. I hope that you can see on the screen. In the above sentences, all the highlighted words are joining words. जितने भी highlighted word हैं उनको हम क्या कहते हैं? Joining words कहते हैं. Highlighted word कौन सा है? ये and this but. ये क्या word है? ये joining words हैं. ये joining words है. These are joining words. ठीक है? Joining words are also known as conjunctions. Joining words को क्या भी कहा जाता है dear students? Conjunctions भी कहा जाता है. I repeat, joining words को क्या भी कहा जाता है? Joining words को conjunctions भी कहा जाता है. ठीक है? Words and, but, or, and, because. ठीक है? ये चारों जो वर्ड हैं are used to join words और one part of sentence with another. यानी कि बेटा ऐसा नहीं है कि हमेशा आप इनसे वर्ड्स को ही ज्वाइन करेंगे. नो, इट्स नॉट नेसेसरी. आप वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं. तो कंजंक्शंस के थ्रू आप काफी सारी चीजों को जब आप कनेक्ट करते हैं, दो चीजों को जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शंस कहते हैं. तो कंजंक्शन बेसिकली क्या हो गया? जो कनेक्ट करने के काम में आता है या जो ज्वाइन करने के काम में आता है उनको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? कंजंक्शंस कहते हैं. राइट? जस्ट अ सेकेंड. Who is not able to see the screen? Is it really so that you are not able to see my screen? Ruhan, screen visible है बेटा? Yes, sir. Okay. Okay, Vihan, it's problem from your end. From my side, screen is visible to everyone. है ना? मैंने क्रॉस कर लिया है. सिद्धम, sorry, सिद्धम,
प्लीज बेटा आप अपनी स्क्रीन को स्विच कीजिए, अदरवाइज मेरी साइड से ओके है यहाँ पे। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग कंजंक्शंस के बारे में। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ये जो यूज होते हैं ये क्या करने के काम में आते हैं, कनेक्ट करने के काम में आते हैं। दिस वी हैव डिस्कस्ड। नाउ मूविंग ऑन, एग्जांपल समझेंगे। ही इज फीलिंग बेटर बट वीक। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कैसा फील कर रहा है, बेटर फील कर रहा है, बट वो अभी भी क्या है, वीक है। जैसे जब आपकी तबीयत खराब होती है बेटा, तो आप इलनेस से तो रिकवर हो जाते हो, आप डिजीज से तो रिकवर हो जाते हो, बट स्टिल आपके अंदर थोड़ी सी वीकनेस रह जाती है। ठीक है, अगर आप कभी बीमार वगैरह तो मतलब अगर हुए हो तो आपको आइडिया होगा इस चीज का कि अगर बेटर, जैसे अब आप बेटर तो हो, पहले से आप अच्छे तो हो गए हो, बट स्टिल यू आर लिटिल वीक, अभी भी आप थोड़े क्या हो, थोड़े वीक हो। तो वहां पे हमने क्या यूज किया, बट कि हम लोग अभी ठीक तो हो गए हैं बट अभी मैं थोड़ा सा वीक हूँ। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, वी विल वेक अप अर्ली। ये एक सेंटेंस है आपका, वी विल वेक अप अर्ली इज वन सेंटेंस एंड अनदर सेंटेंस इज कंप्लीट द वर्क। एंड नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में कौन सा है, कंप्लीट द वर्क। तो इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किसने किया, एंड ने किया। ठीक है, तो यहाँ पे कंजंक्शन कौन हो जाएगा, एंड हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव एग्जांपल, यू कैन ईट अ बर्गर, यू कैन ईट अ बर्गर और अ टोस्ट। ठीक है, या तो आप बर्गर भी खा सकते हो या आप टोस्ट भी खा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बर्गर और टोस्ट, इन दोनों में क्या हो रहा है बेटा, ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये दोनों वर्ड्स को जिसने ज्वाइन किया वो कौन है, और है। इन दोनों वर्ड्स को किसने ज्वाइन किया है, और ने ज्वाइन किया। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। निकुंज खटीक, सिट प्रॉपर्ली इन द क्लास। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिए, ही इज अनहैप्पी बिकॉज ही इज अलोन। हमने क्या कहा, ही इज अनहैप्पी, वो कैसा है, अनहैप्पी है, बिकॉज ही इज अलोन। क्यों अनहैप्पी है, क्योंकि वो बहुत ही अलोन है बेटा, वो कैसा है, बहुत ही अलोन है, वो बहुत ही अकेला है। ठीक है, चलिए तो आई होप कि जस्ट अ सेकेंड, या तो ही इज अनहैप्पी बिकॉज ही इज अलोन। तो यहाँ पे ही इज अनहैप्पी इज अनदर सेंटेंस, ही इज अलोन इज अनदर सेंटेंस, राइट। इनको सेपरेट किसने किया, बिकॉज ने किया। नाउ योर क्वेश्चन विल बी, सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि कब हमें बट को यूज करना है, कब हमें एंड को यूज करना है, कब हमें और को यूज करना है, या कब हमें बिकॉज को यूज करना है। आपको ये रूल तो पता होना चाहिए ना, बिकॉज अगर वही नहीं पता होगा तो फिर तो हम कभी भी कंजंक्शंस को यूज कर ही नहीं पाएंगे। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न कि कौन से कंजंक्शंस को कौन से केस पे किस केस पे यूज किया जाता है। ठीक है, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलिए जस्ट ए सेकेंड, या कंजंक्शन बट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा कंजंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, हम बट कंजंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए इसको समझिएगा क्या होता है कंजंक्शन बट में। बट इज यूज्ड टू जॉइन द सेंटेंसेस हैविंग अपोजिट आइडियाज। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अपोजिट आइडियाज। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी अपन कंजंक्शन एंड भी पढ़ लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, या listen again. तो what I was saying that conjunction but जो है बेटा is used to join the sentences having opposite ideas. ठीक है, but conjunction को कब यूज करते हैं, जब हमारे पास में opposite ideas के बारे में बात हो रही होती है, तब हम conjunction but को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें conjunction and की, किसकी बात कर रहे हैं, conjunction एंड की बात करते हैं, तो यहां पे ये कहता है एंड इज यूज्ड टू जॉइन सिमिलर थिंग और सिमिलर आइडियाज। आई रिपीट, देखिए सुनिएगा बहुत ध्यान से कि जो कंजंक्शन बट है उसको तो हम अपोजिट आइडियाज के लिए यूज करते हैं, और जो कंजंक्शन एंड है इनको सिमिलर आइडियाज के लिए यूज करते हैं। यानी कि जब सिमिलर आइडियाज होंगे तो एंड का यूज करेंगे, और जब अपोजिट आइडियाज होंगे तो बट का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है मेरे पास में, विशाल इज पुअर। ठीक है, विशाल कैसा है, पुअर है। और एक और सेंटेंस है, ही इज हैप्पी। So I have two sentences. The first sentence we have is Vishal is poor, and the second sentence we have is he is happy. ये दोनों सेंटेंस है हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये दोनों सेंटेंस आपस में अपोजिट आइडियाज के हैं। अपोजिट आइडियाज मींस व्हाट, कि बेटा जैसे कोई पुअर होगा तो वो हैप्पी शायद नहीं रह सकते हैं, या ऐसा बहुत कम होता है कि पुअर पीपल हैप्पी रहते हो। ठीक है, तो हमने क्या कहा, यहाँ पे दोनों सेंटेंस अब कॉन्ट्ररी हैं आपस में, तो बीच में हमने अपोजिट आइडियाज के हैं तो इनको हमने बट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है,
इस तरीके से होता है। बट अगर आप कंजंक्शन एंड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, रमन एट ए पिज्जा एंड ड्रैंक ए कोल्ड ड्रिंक। तो रमन ने क्या किया, रमन ने पिज्जा एट किया यानी कि खाया, और उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक करी, कोल्ड ड्रिंक को पिया। तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये कॉन्ट्रारी नहीं है बेटा, ये अपोजिट आइडियाज नहीं है ना, ये सिमिलर आइडियाज हैं कि ऑफ कोर्स ये बात है, जनरली जब हम पिज्जा वगैरह खाने जाते हैं तो व्हाट वी आल्सो ऑर्डर, वी ऑर्डर कोल्ड ड्रिंक एज वेल, जनरली इट हैपेंस। तो ये सब चीजें हैं सब साथ में सिमिलरली आती हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि रमन एट अ पिज्जा, रमन ने पिज्जा खाया और उसी के साथ साथ क्या भी हुआ है, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी पी है। तो ये सिमिलर आइडियाज है, सिमिलर थिंग्स है, इसलिए एंड का यूज यहाँ पे किया जाता है, right dear students? So this is all about your but and now we are moving on to the next one, and the next conjunction we have is or. next conjunction कौन सा है बेटा हमारे पास में, next conjunction है or is used to suggest an option between two choices. Yeah dear students, just listen again. Conjunction or के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. So conjunction or is used to suggest an option between two choices. यानी कि जब हमारे पास में कोई दो choices होती है बेटा, है ना, कोई दो options हैं, कोई two choices हैं हमारे पास में, और उन दोनों choices में से हमारे को एक select करना होगा. तो in that case what we will do, we will use the conjunction or. हम और conjunction को use करेंगे. Just इस example से समझिए. Would you prefer tea और कॉफी, यानी कि आप क्या प्रेफर करेंगे, आप टी प्रेफर करेंगे या कॉफी प्रेफर करेंगे. सो वुड यू प्रेफर टी और कॉफी. सो कंजंक्शन और का यूज हमने किया है, तो यहाँ पे आपने इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, आपको टी या सेलेक्ट करना है या कॉफी सेलेक्ट करना है. सो व्हेन यू आर गिवन चॉइसेस, व्हेन यू आर गिवन ऑप्शंस टू चूज वन आउट ऑफ टू, तो वहां पे हम कंजंक्शन और का यूज कर सकते हैं, ठीक है. कंजंक्शन बिकॉज के बारे में बात करते हैं. दिस इज द लास्ट वन डियर स्टूडेंट्स. बिकॉज इज यूज्ड टू गिव अ रीजन फॉर सेइंग और डूइंग समथिंग. देखिए कंजंक्शन बिकॉज जो है वो यहाँ पे क्या होता है, जब बेटा आपको रीजन बताना होता है, क्या करना होता है, जब आपको रीजन बताना होता है किसी चीज का, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, रीजन बताना है. सो फॉर दैट पर्पस हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें रीजन बताना होगा दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज कंजंक्शन का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे, बिकॉज कंजंक्शन का यूज करेंगे. इन समर समर मीन्स क्या होता है, गर्मी का सीजन. आई लाइक टू सेल. सेल मतलब क्या होता है बेटा, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो आप जर्नी करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो जर्नी होती है उसको सेल बोला जाता है. ऐसे आई एल यानी कि शिप वगैरह के थ्रू, बोट वगैरह के थ्रू जो आप जर्नी करते हो उसके लिए सेल वर्ड का यूज होता है, SAIL, ठीक है. तो वो क्या कह रहा है बेटा, इन समर यानी कि गर्मियों के सीजन में आई लाइक टू सेल, मुझे सेल करना अच्छा लगता है. बिकॉज मीन्स क्योंकि द वेदर इज नाइस, क्योंकि जो वेदर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वेदर बहुत ही अच्छा होता है. तो उन्होंने क्या किया, उसका रीजन उन्होंने यहाँ पे दिया हमारे को बेटा, इसलिए उन्होंने बिकॉज जो है, बिकॉज कंजंक्शन का यूज उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है. आई होप कि दिस इज अगेन क्लियर टू यू ऑल, ठीक है. So this was all about your conjunction part. That's all for today's session. Thank you.